everyone, my name is Sakshi Dagar. So today I have said you our topic is phrase according to our chapter 1 of English grammar. We have started with the chapter, now let's start with the phrase, okay? As we have done with the sentences, and after the end of this chapter we will do the complete exercise of sentence and phrase that can make you understand everything, okay? Now let's start with the definition of phrase. In the pink box you can see there is a pink box and the definition is also written. A phrase is made up of a group of words that make sense but not complete sense. It does not have a subject or and a predicate. तो देखिए फ्रेज हमारा ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है। ये हमारा जो फ्रेज होता है कोई सेंस मतलब सेंस तो बनाता है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। और इसमें कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता है। जैसे कि आप इधर एग्जांपल देख लीजिए, इन स्पाइट ऑफ, इन अ कॉर्नर, पिंक इन कलर, एट द शॉप, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है। नाउ कम टू फीचर्स, ओके। फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट फीचर इज फ्रेजेस डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फ्रेजेस के कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता, ओके। सेकेंड, दे कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्व्स, वो अपने आप से खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड, फ्रेजेस डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, फ्रेजेस खुद कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। सो देयर आर कॉमनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. First one is noun phrase, second one is adjective phrase, and third one is adverb phrase, okay. Now let's read the definition of noun first. So noun phrase is one that can act as a noun or a sentence. नाउन फ्रेज वो होते हैं जो कि नाउन की तरह सेंटेंस में एक्ट करते हैं। जैसे कि इधर क्वेश्चन है, ही एक्सपेक्टेड टू रीच होम अर्ली, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है इसी से हम समझेंगे। जस्ट वेट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। नाउ यू कैन सी हियर, ओके, नाउन। सो देखिए नाउन का जो हमारा एग्जाम्पल है, आप अगर नाउन फ्रेज आपको कहीं पर भी पहचानना है तो आप क्या करेंगे, बस सुनिए। हम what we will insert, we will, if we have to find out, if we don't have a hint, we have to find out the noun phrase or to underline the noun phrase. So what will we do, we will just ask our question by inserting what, okay, by inserting what. If we will ask the question, we will get our noun phrase answer, okay. Now just for example, there is a sentence, he expected to reach home early, right. So अगर हम क्वेश्चन इसमें if we insert what and ask the question, like अगर हम फिर इससे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, जैसे कि what did he expect, तो what will the answer come, to reach home early, उसने expect करा था, right. So we will get our noun phrase, to reach home early is the noun phrase of our. Like if we have the question, he wanted to learn Sanskrit, right, he wanted to learn Sanskrit. So in this, if we insert what and ask the question like what he wanted to learn, what he wanted, Sanskrit, right. So just we have to answer Sanskrit is our, okay. Now let comes to adjective phrase. If it is clear, so just like up my video, okay. Now this is the adjective phrase. If we have firstly I will tell you the clue that how will you get to find out adjective phrase. If you insert, in some cases if you insert which, so you will definitely get the answer of adjective phrase, okay. Now let's read its definition. An adjective phrase is a group of words that acts as an adjective in a sentence. Means adjective phrase वो group of words होते हैं जो कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. एज यू कैन सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, फ्लावर्स with good fragrance have been used for decoration. If I insert the what, if I insert which, so what will be the answer. देखो अब मैं अगर what which को insert करूँ इधर और पूछूँ क्वेश्चन जैसे कि which flower have been used for decoration, तो answer will be with good fragrance. So this is your adjective phrase, okay. If I just start with the B example, that is Rohan, a boy with courage, fought with the thief, okay. And this, if I insert which and ask the question like Rohan, which, just wait,
Yes, so if I insert which here, so you will definitely get the answer. If you can see, देखो बिल्कुल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. तो देखो जिस इफ यू देखो बॉय विद करेज, आपको पता चल रहा है करेज, करेज मतलब अगर हम ऐसे देखते रोहन फोर्ट विद अ थीफ तो वो डिफरेंट हो जाता है ना. अब बॉय विद करेज, इधर एक एडजेक्टिव, एक कम्प्लीमेंट लगाया गया है इस बॉय के लिए, तो वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर आता है. ठीक है, विल डू द एक्सरसाइज फाइनली ऑफ दिस ऑल्सो. ओके, टू क्लियर दिस. So now this is our adverb phrase, as you can see, right? In adverb phrases, as you can see, देखो adverb phrases means a group of words that performs the function of an adverb in a sentence is called an adverb phrase. Means कुछ ऐसे group of words जो कि adverb का function करे हमारे sentence में, वो adverb phrase में आते हैं. Okay, there are different types of adverb phrases. First one is adverb phrase of manner. Tell us how the action is done. फॉर एग्जाम्पल शी स्माइल्ड इन अ वार्म मैनर. एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर में हमें पता चलता है कि वो कैसे वो काम किया गया था, हाउ द एक्शन इज डन, कैसे वो काम किया गया था. ठीक है, जैसे कि शी स्माइल्ड इन अ ग्रेस वार्म मैनर. ठीक है, तो इसमें जो वार्म मैनर है वो हमारा मैनर को दर्शा रहा है. ठीक है, नाउ second is adverb phrases of place. Tell us where the action is done. We were looking for you in every possible place. Adverb phrase of place हम बताते हैं कि तुम मतलब कहाँ वो एक्शन किया गया था. जैसे कि एग्जाम्पल में है कि हम तुम्हें हर जगह देख रहे थे जहाँ तुम हो सकते थे. ठीक है, इन एवरी पॉसिबल प्लेस हमारा एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस को रेफर कर रहा है. अब हम चलते हैं एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम. टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन. फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस ड्यूरिंग द डे. देखो एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम में क्या होता है, वो हमें बताता है कि वो टेल अस व्हेन द, कब वो एक्शन किया गया था, कब. ठीक है, जैसे कि फ्लावर्स एमिट फ्रेग्रेंस ड्यूरिंग द डे. इस एग्जांपल में हमारा जो ड्यूरिंग द डे है वो हमारा फ्रेज एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है. ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट सेशन we will surely do our exercise. Now for remembering points we will do the remember, that it can help you. So these are the remember points of phrases. Here is written the definition of phrases. Okay, if you want to take the screenshot you can. Okay, it will help you mostly. Now there is a definition of phrases. Just see, a phrase is a group of words that make sense but not a complete sense. A phrase do not have a subject or predicate and it cannot stand by itself. There are three types of phrases: noun phrase, adjective phrase and adverb phrase. तो देखो इधर बताया हुआ है कि फ्रेज हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि सेंस को रेफर करता है, जिसमें सेंस तो होता है थोड़ा सा, जो सेंस तो बनाता है लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है. ठीक है, और फ्रेजेस जो होते हैं उनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई प्रेडिकेट नहीं होता और वो खुद से खड़े भी नहीं रह सकते. मतलब इट कैनॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, दे कैनॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ. ओके, और थ्री टाइप्स के होते हैं हमारे फ्रेजेस. फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज. ओके, तो हमें पता है अगर हमें नाउन फ्रेज को कैसे फाइंड आउट करें तो व्हाट विल बी इंसर्ट, we will insert what, and if the answer we get it is in the noun phrase. Okay, second, let's learn the definition of phrases. First one is phrases that do the work of a noun, act as a noun are called noun phrases. phrases जो कि noun की तरह act करते हैं वो noun की तरह act करते हैं noun, तो ठीक है वो हमारे noun phrases कहलाते हैं. और phrases जो कि adjective की तरह act करते हैं वो adjective phrase कहलाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है इधर, वी ऑल लव ईटिंग आइसक्रीम्स. व्हाट वी ऑल लव, ईटिंग आइसक्रीम्स, तो हमारा नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल था. सेकेंड, इंसेंस स्टिक्स मेड ऑफ सैंडल पाउडर वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिवोटीज. ओके, जब मैंने इंसर्ट करा इसमें क्वेश्चन वो विच, तो देखो हमारा आंसर क्या है, देखो विच इंसेंस स्टिक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिवोटीज. कौन सी इंसेंस स्टिक्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी डिवोटीज, मतलब वो जो पूजा पाठ पुजारी होते हैं उनके बीच कौन सी इंसेंस स्टिक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी. इंसेंस स्टिक्स क्या होती हैं, जो धूप बत्तियाँ होती हैं. ठीक है, तो विच इंसेंस स्टिक्स दे आर मेड ऑफ सैंडल पाउडर. तो हमारा जो सैंडल पाउडर है इधर वो नाउन एडजेक्टिव फ्रेज का एक्ट कर रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रेजेस दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब फ्रेजेस. फ्रेजेस जो कि एडवर्ब फ्रेज की तरह एक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं,
फंक्शनेट करते हैं तो वो हमारे फ्रेजेस के अंदर आते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस के अंदर. जैसे कि फर्स्ट देयर इज एन एग्जांपल, द लेडी स्पोक इन अ काइंड मैनर, यू विल बी ऑन टाइम ऑन नेक्स्ट टाइम, यू विल बी ऑन टाइम एट द नेक्स्ट डे. तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे एडवर्ब फ्रेज के अंदर आते हैं. ओके, सो दिस इज द सेशन. बाय एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन in our chapter number 1 exercise session. Please just watch that also. Okay, it will help you very much. Okay, watch that video. Okay, bye bye.